So, my dear youngsters, again we are meeting at the same place at the same time with the same energy. Here we go. We are going to start our English learning program. Here we go. Are you ready? Yes. Are you excited? Yes. So, shall we start, my dear youngsters? So, today at the outside we have motivational quotes. In the heading of motivational quotes, we have learned the quote of Ratan Tata. So, again I am repeating the quote of Ratan Tata. None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. So, here we go. This is the quote of the Ratan Tata. None can destroy iron. So, repeat after me for once, at least for once. None can destroy iron. Repeat after me. None can destroy iron, but its own rust can. But its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. Thank you. जब आप लोग यहाँ आएंगे और आप लोगों से कोट का डेमोन्स्ट्रेशन में करवाऊंगा तो मैंने उसका एक मैनर, एक सलीका, एक एटिकेट आप लोगों को बताया हुआ है with regard to the public speaking skill, and the manner is that whenever you come on the dais, you need to say, you need to greet, and after the greeting, you would tell your name. Say, for example, my name is XYZ, and after that, you would say, I am going to say the quote of Ratan Tata, I am going to say the quote of Mahatma Gandhi. ठीक, उसके बाद में आप लोग कोट बोलेंगे, देन लास्ट में आप लोग अगेन ग्रीट करेंगे, मीन्स थैंक यू बोलेंगे, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं, या कोई और ग्रीटिंग है आपके पास छोटी मोटी तो वो आप लोग कर सकते हैं अपने लिए, अपने एतबार से, फिर आप यहाँ से चले जाएंगे। तो 2-3 लोगों को बुला करके एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करवाऊँगा मैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट एक और हमारे पास में कोट है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, अगेन इसको भी छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। कीप इट इनसाइड माय डियर, दिस इज योर मोबाइल फोन. You can keep your mobile phone as your servant. Let me tell you one thing about the etiquette of the mobile phone, about the etiquette of technology also. This mobile phone is a symbol, is a what do you call the hard form of technology, right? We are keeping 24/7 this much higher level of technology, and you are the very first generation in the history of human mankind. You are the first generation who is keeping this much technology 24/7 in your pocket, and you are keeping it handy in the whole day. Every time, even while sleeping, you keep it nearby your body. This is wrong, my dear. This is wrong. This is harmful for your biological system. Perfect. I always urge, I always request to the youngsters that learn your own neurology, learn your own psychology, learn your own biology, whether is this harmful or whether is this good for your health or not. This technology can be your servant or this technology can be your master. It's up to you whether you are taking this as your servant or as your master. Tell me, are you keeping this as your servant or as your master? As the master? No, my dear, this is wrong. Keep it as servant, not as the master. You should be the master of the technology, not the servant. If you are saying that, my dear, making mistake is allowed in our class. If you are taking this technology as your master, it means you are the servant of the technology. Because there are two parties in the relationship of the masters. One is the master, another is the servant. If you are the master, this one will be the servant. So keep it as servant. So the technology is a good servant but a bad master. Technology is a good servant but a bad master. Repeat after me. Technology is a good servant but a bad master. इस तरीके से आप बोलना सीखोगे. So this is the way of learning the language. The methodology of learning a language is same as we have learned Hindi in our childhood. What was the methodology of learning Hindi? This was the methodology when we used to learn a word, a phrase, a sentence. We used to pronounce, we used to repeat, we used to say again and again and again. आपने देखा होगा कि एक जो बच्चा होता है जब वो मम्मी मम्मी कहना स्टार्ट करता है, पापा पापा कहना स्टार्ट करता है, सो ही और शी रिपीट्स अगेन एंड अगेन.
repeats again and again, repeats again and again, right or wrong? This is only methodology to learn any language, whether you are learning Japanese or Korean or German or French or Spanish or Turkish or Arabic or the English. But in case of English, for Indians, the special case is that for Indians, English is a second language. If I asked you that, Shubham, what is the name of your department? Definitely you would say to me, the Department of Physical Education, AMU. You would not say to me, Shobai, Ilme, Nafsiyat, etc., etc., not in Urdu, Vibhag, etc., etc. No, you would say to me, Department of Physical Education. This is why for Indians, English is a second language, not a foreign language. English is a second language, not a foreign language. So take it as second language, not as a foreign language. Already we are habitual of pronouncing the English words. Already we are habitual. We are used to with the sentences, with the phrases, with the pronunciation part of the English language, right or wrong? What's your name? I think you are busy with your examinations, right or wrong? You, both of you, and Shubham also. One day, Shubham, I invited Shubham here, and Shubham showed his aura this way. It has recorded in the video, and it has also uploaded by the scholar on the YouTube also, my dear Shubham. So keep the things within the limits, not outside the limits. Perfect. So here we go. Again, we have another quote. You will never reach your destination. Repeat after me. You will never reach your destination. ठीक है. सिलेबल यूज किया जा रहा है नेशन. ठीक है. एक तो मैं नॉर्मल बोल देता हूं जैसे आप लोग बोलते हैं नेशन. सिलेबल यूज किया जा रहा है नेशन, डेस्टिनेशन, इंटरनेशन, डेस्टिनेशन, destination. Make your jaw, practice your jaw. ठीक है. Without, if you don't practice your jaw, you cannot pronounce the words. Perfect. Give a pain to this part of the body. Destination. Okay. All of you are repeating. So you will not reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कई दिन. थोड़ा सा हम लोगों ने इसको पढ़ा. इसकी हिंदी मीनिंग भी मैं समझा चुका हूँ. लिखा हुआ है ना ये? नहीं लिखा तो था उस दिन. कीप इट फास्ट. डू इट फास्ट प्लीज. करिए, जल्दी करिए प्लीज. अभी फिलहाल आप किसी भी पेज पर लिख लीजिए रैंडमली. देयर इज नो इशू. बट आफ्टर द क्लास आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वेयर टू राइट और वेयर नॉट टू राइट. जिन लोगों ने लिख लिया है उनको एक बात समझा रहे हैं जो पहले से क्लास अटेंड कर ही रहे हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाक्स, एस लगाया है. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ही एस जोड़ा है. बार्क इज अ वर्ब. बार्किंग डॉग सुना होगा ना. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत भी है. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. इसकी हिंदी ये होती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. सुना होगा ये अक्सर आपने कि कोई अगर बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, जैसे कि शुभम जो नज़र आ रहा है, बट अंदर से वो लोग बड़े काइंड हार्टेड होते हैं. दे आर क्वाइट सॉफ्ट स्पोकन गाइज. राइट और रॉन्ग? हु इज अ क्लासमेट ऑफ शुभम हियर इन अवर क्लास? हु इज अ क्लासमेट ऑफ शुभम? दिस नो वन. यू आर द सिंगल मैन आर्मी फ्रॉम BPEd 4th सेम. सो यहाँ पर एस यूज़ किया गया है. इसकी भी हिंदी क्या बनेगी? ता ती ते. ठीक. एट एवरी डॉग दैट बार्क्स. हर एक वो डॉग जो के भौंकता हो. तो तातीते आ गया यहाँ पर. समझ गए ना? तो टेंस का यूज़ हर जगह है. अगेन एंड अगेन मैं अगले 20 दिनों तक, जब तक ये वर्कशॉप चलने वाली है, मैं बताता रहूँगा कि टेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है. ठीक है.
बाकी जो टेंसेज हैं वो उनको हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग कंप्लीट 1 आवर डिवोट करेंगे आज टेंसेज को लेकर के। जो लोग आज नहीं आए हुए हैं ना, लाइक पूजा वैशाली एंड द अदर गाइज, दे विल रब देयर हैंड्स, दे विल रिमेन इन लॉस, एट मोस्ट लॉस रेदर टू से। सो मैंने कहा कि यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ़ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग डेट बार्क्स। ठीक है, विंस्टन चर्चिल का ये कोट है। कोट लिखते वक्त एक बात का ये ख्याल रखना ज़रूरी होता है, अगर कहीं पर आप राइटिंग स्किल्स के हवाले से ये बात समझ लें कि अगर आप कहीं पर किसी की बात को कोट करेंगे तो उसका नाम लिखना मैंडेटरी माना जाता है। रिसर्च थीसिस डेजर्टेशंस में स्पेशली या बुक राइटिंग के वक्त इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। फुल स्टॉप लगाया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में इसको क्लोज किया हुआ है। इससे पहले भी ये बातें बताई जा चुकी हैं। शुरुआत में हम लोग बस 2-3 मिनट के अंदर में इसको लिखें ना आप लोग, इसका हैंड आउट देंगे हम। इसके अलावा ये जो चैप्टर है अब ये नया स्टार्ट कर रहे हैं आज से एक चैप्टर हम लोग, जिसके अंदर में हम लोग सुन लें मेरी बात को, उधर ना देखें, मेरी बात सुन लीजिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स, लेटर के फॉर्मेट्स, मैसेज जिसमें व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल रहेगा, लिंक्डइन के मैसेजेस, CV जिसको रिज्यूमे भी बोलते हैं आप लोग, करिकुलम विटे उसका फॉर्मेट, पोस्टर का फॉर्मेट, और आपके फॉर्मल जो रिप्लाईज होते हैं लेटर्स के उनके फॉर्मेट्स, और जो बेसिक डिपार्टमेंट वाइज जो ड्राफ्टिंग वगैरह यूज़ करी जाती है। अगर आप कहीं पर एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर कहीं जाते हैं, आपके पास में कोई नोटिस आता है, आते रहते हैं ना, देखा होगा आपने अपने चेयरमैन को, उसको साइन करके दिया, उसको बताया, उसको कमांड दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी यूज टू विद दीज थिंग्स। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग क्या होना चाहिए, यूज टू होने चाहिए। और ईमेल फॉर्मेट, ये 7, 8, 10, 12 चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर में डिस्कस करेंगे। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है और हमारे पास जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं इसी 1.5 घंटे के टाइम में। इसके हैंड आउट देंगे तो सिर्फ समझना है इसको। ओके, हैव यू गॉट द पॉइंट फारिन? यहाँ जो समझने वाली बात है इम्पोर्टेंट वो ये है, 2 को सबसे पहले लिखा गया है। ये बातें बचपन में सिखा दी गई हैं। अगेन सिर्फ एक रिकैप लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अगेन जो फॉर्मल चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनल इंग्लिश है, उससे यूज टू हो जाएँ। तो बड़ी बेसिक बिल्कुल 9th 10th वाली चीज़ लेकर के आए हैं स्टार्टिंग में। डिपार्टमेंट जो भी हो, फिलहाल आपका फिजिकल एजुकेशन AMU है वो रहेगा। आगे इन फ्यूचर जो भी रहता है उसका नाम आप लोग लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रेनर हैं, कहीं एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, और आपको अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजना है, तो से फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मंगलातन यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जो भी रहे वो यहाँ पर आप बयान कर देंगे। डेट रहेगी, इस एड्रेस और डेट के बीच में आप चाहें तो एक लाइन छोड़ दें, चाहें तो ना छोड़ें, ये ऑप्शनल है। CBSE का फॉर्मेट भी यही है, तो ये ऑप्शनल बात है। लेकिन इसके बाद में थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर इसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। सब्जेक्ट के अंदर जितने कम से कम वर्ड्स आप यूज़ करें उतना बेहतर है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि लीव यानी छुट्टी के लिए लिखी जा रही है। छुट्टियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं, 7, 8, 10, 12 तरह की छुट्टियाँ होती हैं। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे BPED MPED के बाद, वो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ बताने की। जैसे कैजुअल लीव होती है, मैटरनल लीव होती है, पैटर्नल लीव होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। रेस्पेक्टेड सर, यहाँ राइटिंग ये जो फॉर्मेट बनाते वक्त एक गलती हुई है, ठीक है। गलती ये हो रखी है कि ये जो R है ये कैपिटल होना चाहिए था, तो उसको सही कर देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम जो भी रहे, एज पर द सिचुएशन आप लोग उसको कर लीजिएगा। दूसरी एक बात ये थी, डिपार्टमेंट का D कैपिटल, फिजिकल एजुकेशन का F कैपिटल, E कैपिटल, A कैपिटल, M कैपिटल, फिर अगेन A कैपिटल। ये सारे फॉर्मेट्स, ये सारे लेटर्स कैसे रहेंगे, कैपिटल रहने वाले हैं। इस जगह ही नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ लिखो अपनी लाइफ के अंदर में, कोई भी चीज़ लिख रहे हो, कहीं पर भी किसी जगह का नाम आ जाए स्पेसिफिक, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी स्कूल का, किसी यूनिवर्सिटी, किसी डिपार्टमेंट, किसी जिम, कहीं भी हैं आप दुनिया के अंदर में, तो ये रूल है कि उसका पहला जो लेटर होगा वो कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। अगर वर्ड स्पेसिफिक आ जाए किसी जगह का नाम, लेकिन नॉर्मल आप लिख रहे हैं डिपार्टमेंट, आई एम इन द डिपार्टमेंट, तो फिर D कैपिटल नहीं स्मॉल रहेगा। समझ गए ना ये रूल।
I am Manav Singh. Manav is absent today. Manav is the best student of this class. Singh is student of BP8 फर्स्ट सेमेस्टर. उसने अपना रेफरेंस, अपना हवाला दिया है, अपने बारे में बताया, अपना आपको इंट्रोडक्शन दिया है. आप भी यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे जब आप जिस भी पोस्ट पर रहेंगे, ठीक है. विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन डायग्नोज्ड विथ चिकन पॉक्स. यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है आई हैव बीन डायग्नोज्ड, यानी कि मुझे डायग्नोज किया गया है विथ चिकन पॉक्स. ये मुझे डायग्नोज किया जा रहा है, मेरे अंदर ये बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा कि मुझे क्या है, चिकन पॉक्स है. ये पैसिव वॉइस यूज़ किया गया है. मौका रहा तो हम लोग पढ़ेंगे आखिरी के हफ्ते के अंदर में. क्या यूज़ किया गया है अहमद? पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस एक ऐसा लैंग्वेज का टॉपिक होता है जहाँ पर सब्जेक्ट पर फोकस ना करके, यानी डूअर ऑफ द एक्शन के ऊपर फोकस ना करके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस बनाया जाता है, ठीक है. डायग्नोज किसने किया होगा? डॉक्टर ने. किसको किया है? मानव को. तो मानव हेयर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस लिया जा रहा है. आई हैव बीन डायग्नोज्ड विथ चिकन पॉक्स, ये टेंस नहीं है बल्कि क्या है, पैसिव वॉइस है. आई हैव बीन एडवाइज्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, बाय द डॉक्टर टू टेक रेस्ट फॉर 10 days. मुझे बताया गया है कि मैं 10 दिन के लिए रेस्ट करूँ. 10 को यहाँ पर 10 नहीं लिखा है, ये राइटिंग का पार्ट होता है. 10 को TEN लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मल राइटिंग का पार्ट होता है. आई देयरफॉर, इसलिए मैं, इसकी हिंदी क्या है? आई देयरफॉर. चाहे तो यहाँ पर आई ना लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन इसको और फॉर्मल बनाते हुए कहा गया है आई देयरफॉर, यानी कि मैं खुद आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुद आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ग्रांट मी 10 days लीव. अगेन TEN लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप. लीव फ्रॉम 12th of May. अगेन एक बात समझ लीजिए, जो मे है उसका जो एम है साइमा, वो कैपिटल है. अगेन जो यहाँ पर मे है वो क्या है? कैपिटल है, ठीक है. इसी तरीके से जो हफ्ते के दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे, इनके भी फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल में लिखा जाता है. महीनों के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल में लिखा जाता है. तो राइटिंग स्किल के हवाले से मैंने यहाँ पर 3 बातें बताई हैं, ठीक है. अभी मैं किसी से ही पूछ लूँगा मैंने क्या बात बताई है. आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, बहुत ही शॉर्ट में बात को यहाँ बयान किया गया है, इंतहाई शॉर्ट में. इससे ज़्यादा शॉर्ट बात नहीं हो सकती है, आप जिस लेवल पर हैं, ठीक है. मैं आपका आभारी रहूँगा. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम्स, क्लास, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. इसको हम लोग यहाँ क्लोज कर रहे हैं. इसका हैंड आउट मिल जाएगा आपको. आज हाफ डे वगैरह रहता है ना, वरना आज ही दे देते. विल प्रोवाइड टुमारो. कल भी हम लोगों ने एक हैंड आउट दिया था, आपको नहीं मिला, कल दे देंगे, डोंट वरी. कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए यहाँ से. वैसे क्वेश्चन पूछना डेली अलाउड है, जो भी फॉर्मेट मिले. यहाँ भी दिमाग में ना आया हो तो जो फॉर्मेट मिले उसको रीड करने के बाद में तब आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. ऊपर यो आपने बात कही है वो बिल्कुल बात सही कही है. एंड योर एडवाइस, योर वर्ड्स आर लाइक चेरी ऑन द केक. आई रेस्पेक्ट योर वर्ड्स. बट जो अभी लेटेस्ट फॉर्मेट्स हैं हमारे पास में, वहाँ यहाँ को पर कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, जो भी लगते थे वो सारे हटा दिए गए हैं. अभी जो इंग्लिश है, अगर आप इंटरनेशनली थोड़ा सा गौर देंगे ना, अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो इंटरनेशनली इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं कि इंग्लिश को जितना इजी कर दिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है इंग्लिश, इसलिए इसको ईजी करने की बात चल रही है. हद ये है और साफ यहाँ तक डिस्कशंस चल रहे हैं कि जो ही और शी का डिफरेंस है, यानी मेल और फीमेल के लिए जो स्पेसिफिक हम लोग प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ही शी, उसको भी ख़त्म करने की बात चल रही है कि उसको भी न्यूट्रल कर दिया जाए. तो जितना भी आप फॉर्मेट्स देखेंगे वो ईजी किए जा रहे हैं. अच्छा ही हुआ कि उसको हटा दिया, बात ईजी हो गई. क्वेश्चन जब दूसरे का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए, ये एटिकेट्स का पार्ट, मैनर्स का पार्ट है, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए. यस, जवाब दिए ना, जितने भी कॉमा हैं सारे के सारे ही हटा दिए गए हैं. रेस्पेक्टेड सर, ये हाँ यहाँ लगाना चाहें लगा लीजिएगा, यहाँ भी चाहें तो आप लगा लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप लोग कोई ग्रामरियन थोड़ा ना बनने जा रहे हो, ना लेक्सिकोग्राफर बनने जा रहे हो. आप तो कहीं पे फिजिकल एजुकेशन की हैसियत से जाएंगे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है आप लोगों के लिए. आप चाहें यहाँ कॉमा लगा दीजिए, लेकिन जो लेटेस्ट फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर यूज़ नहीं किया जा रहा है कॉमा. सो आई रिक्वेस्ट
नहीं, आप देयरफॉर की जगह सो तो यूज़ ना करें। जो सो है ना उसका जो मतलब आप एक तरीके से ही समझ लीजिए। मैं बताता हूँ इसके ऊपर, मैं एक छोटी सी बात बता करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लैंग्वेज होती है ना, जब फॉर्मली हम लोग बात करते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो वर्डिंग्स कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये उतना फॉर्मल नहीं है, जो इसकी डिग्री है ना फॉर्मलनेस की वो कम है सो की। इसकी जगह कहाँ गया, देयरफॉर ये रहा। और भी वर्ड्स हैं, जब हम अगले और फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे वहाँ और वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, और भी कई लैंग्वेजेस जानने को मिलेंगी आपको। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। सो का वर्ड यहाँ यूज़ ना करें। उसका जो रेस्पेक्ट है, जो उसका मैनर है, जो उसका एटिकेट है और जो एथिक्स हैं वहाँ पर कम हो जाएगी। मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ करते रहता हूँ, एथिक्स। एथिक्स, आप लोगों ने गौर दिया कि ये वर्ड की मीनिंग क्या होती है? कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं इसको। एथिक्स बेसिकली मैनर्स के ही सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, एथिक्स को, एटिकेट्स, ठीक है। सो मानव, अगेन यू आर एब्सेंट बट यू आर प्रेजेंट ऑन द स्लाइड। मानव सिंह, यस प्लीज। सो से थैंक यू। थकन तो नहीं हुई किसी को? शुभम, आप थके हुए से लग रहे हैं। ये बाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि अभी सोकर उठे हैं और डायरेक्टली डिपार्टमेंट चले आए हैं। सोकर आए हैं अभी अभी इमीडिएटली। आप दोनों लोग घर से आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए बेहतर बात है। पानी वगैरह पी लीजिए, पानी वगैरह होगा आप लोगों के पास? पानी है, पीजिए, पानी पीजिए सारे लोग जी। तो हाथ ये वाला ऊपर 10 सेकंड के लिए करेंगे सारे लोग। एक करना है, राइट वाला कीजिए। अब ये वाला, ठीक ठीक है। नेक, टाइम नहीं है कि मैं इनको बोलूं गो टू द वॉशरूम, वॉश योर फेस, कम अगेन। We are already running short of time. So what should I do, my dear Asaf? So this is the technique to rejuvenate your body, your mood. मैंने word use किया है rejuvenate. ये बोर्ड को इसलिए रखा है मैंने ताकि आप लोग जो वोकेबलरी नहीं लिखते हो तो मैं यहाँ लिख दिया करूँ, और आप लोग जो वोकैब वाला सेक्शन मैंने बनवाया है उसको तैयार कर लें। आखिर में बना लीजिए, आखिर के 5 पेजेस के अंदर, हाँ एकदम आखिर में बना लीजिए वोकैब का सेक्शन, क्योंकि और भी वोकैब आने वाली है। ये 2 वर्ड्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली पढ़ाते वक्त। इसका पीछे कुछ लॉजिक है। It has slipped from my mind. Sorry for this. Please forgive me, guys. Here we go. Really, it has slipped. Unfortunately, but fortunately in another sense, if he took, cause the Bible said to the Akbar that अच्छा ही हुआ. हाँ, rejuvenate. I have recalled. Again slipped. So what I am telling you, what I am trying to tell you, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि वी आर ह्यूमन बींग्स, नॉट द रोबोट्स, वी मेक मिस्टेक्स।
ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। इसको यहीं रहने दीजिए। बोर्ड दिख रहा है ना सारे लोगों को? विजिबल है अरीफा आपको? ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अहमद, हम लोग अभी तक इस बात को कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं? मोर देन 40 टाइम्स। इतना रिवीजन कर चुके हैं, इतनी बार रिवाइज करवा चुका हूँ। तो मैंने ये रेफरेंस इसलिए करवाता हूँ, ये एज अ रेफरेंस टॉक थी इनकी तरफ से, ताकि जो नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना क्लास के अंदर में तबर्रुकन, तो उनको ये रियलाइज़ हो जाए कि इतनी बार रिवाइज करवाया जा चुका है। तो वो ये ना सोचें कि एक दिन में टेस्टिंग नहीं हो सकती है, दे नीड टू डिवोट सम टाइम। तो अगेन हम लोगों ने स्लाइड भी लगाई हुई है कि प्रेजेंट टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट टेंस को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल की जो क्वालिटी है वो ये है कि इसके अंदर में क्या यूज़ किया जाता है? ता है, ती है, ते है। परफेक्ट, ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। इसकी वॉइस मैंने सिखाई हुई है, इसकी एग्जाम्पल्स मैंने बताई हुई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसकी जो वॉइस है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जो वॉइस है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, दे हैव प्लेड। उसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके अंदर में हम लोग बात करते हैं कब से, कोई काम जो हो रहा है वो कब से हो रहा है। ठीक, तो आज इसी पर बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो ज़रा भी ना उतारें कोई चीज़, बाद में उतारिएगा, सिर्फ समझना है आप लोगों को। ये गड़बड़ है थोड़ा सा। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश तलाश करके लेकर के आइएगा गूगल से या जहाँ से भी, या किसी बुक से। एक हिंदी वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, जुगाड़। इसकी इंग्लिश तलाश करके लेकर के आइएगा, ठीक है? ये होमवर्क है आप लोगों का। तो हमने ये बात बोली है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे तातीते वाला सेंटेंस आया हुआ है ये। और अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ जो और देने की बात है वो ये है कि ये जो प्ले है ये कौन सी फॉर्म है? V1। और ये वाला जो प्लेइंग है ये कौन सी फॉर्म है? V4। यानी ING फॉर्म भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ING फॉर्म। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आज के बारे में मैं ये बात बता रहा हूं कि मैं अभी 4 बजे तक क्रिकेट खेल रहा था, यानी अब मैं खेल चुका हूं। अभी मैं शावर लेने के बाद में और रिफ्रेशमेंट लेने के बाद में समोसा और फ्रूटी, मैं अभी रेडी हूं पढ़ाने के लिए, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? आई हैव प्लेड क्रिकेट
ये फॉर्म कौन सी है? V3। इसका जो हिंदी बनेगा वो क्या था? तातीते। और ये क्या है? रहा हूँ, खेल रहा हूँ। और इसकी है चुका हूँ। अब अगर मुझे ये बताना हो कि मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, सपोज मैं अभी क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से बॉल करवाइए, तो मैं क्रिकेट अभी खेल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मार्कर को बैट बने, अमेरिकन्स वी आर मेकिंग दिस मार्कर बैट एंड मानव इज डूइंग बॉलिंग। मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो बॉल करवाया उन्होंने, ठीक। कौन सी बॉल कराई थी? नहीं नहीं, वो कैटेगरी जो होती है बॉलिंग की उसमें बताइए। स्प्रिंग होती है, क्या क्या होता है? स्विंग बॉल इन्होंने करवाई थी। तो मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। कब से खेल रहा हूँ? मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 2 घंटे से। तो मुझे स्वेटिंग हो रही है, मैं थक भी गया हूँ और तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुझे आप ये वाले कपड़े एज्यूम ना करके आप सोचें कि मैं स्पोर्ट्स किट में हूँ, वाइट वाली, ठीक है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तब मैं क्या लिखूँगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहाँ पे टाइम बताना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है टाइम बताना। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। तो ये जो फॉर्मेट है वो कब का है? कब से। जब ये बताना हो कि कोई जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है। तो 4 बातें सीखी हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। प्रेजेंट टेंस के अंदर एक है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके अंदर में हम लोग बताते हैं अपनी आदत, तातीते, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो, जिसमें आईएनजी फॉर्म या V4 फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। कोई काम अगर कर चुका हो, कोई बंदा चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो जा चुके हैं, वो खा चुके हैं, वो खेल चुके हैं, ठीक है, उस वक्त कौन सी फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जब ये बताना हो कि कोई काम कितने समय से चल रहा है, 2 दिन से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, ठीक है। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। अगेन हम लोग स्लाइड देख लेते हैं जी। तो कब से जब ये बताना रहेगा ना किसी काम को, कब से, कोई काम जो हो रहा है वो कब से हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन वो कब से रहे हैं, कब से खेल रहे हैं। आप यहाँ आ जाइए जल्दी से, जुनेद प्लीज़, ठीक है, टेक योर सीट। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 ईयर, वो 1 साल से फुटबॉल खेल रहा है, वो 1 साल से फुटबॉल खेल रही है, वो 1 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं, या 1 घंटे से, या 1 हफ्ते से, या 1 महीने से, या 1 सेंचुरी से, या 1 डिकेड से, जब से भी हो टाइम, वो टाइम यहाँ पर डिनोट करेंगे हम लोग। इसीलिए इसके फॉर्मेट के अंदर, 1 मिनट, इसीलिए इसके फॉर्मेट के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब 2, मेन वर्ब प्लस टाइम। टाइम को मेंशन करना कंपलसरी है जी। बताएंगे उसे, अभी 2-3 मिनट रुकिए, उसको ही बताने वाले हैं, सेंस को ही। पहले ये बताएं, यहाँ तक जितनी बात अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये सारी पीछे की बातें हैं। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जी? नोट कर लो। इसे नोट अभी करवाएंगे, रुकिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग एक छोटा सा टेस्ट दीजिए पहले, एक न्यू पेज पर, यानी एक रफ नोटबुक रखें आप अपने पास, वहाँ पर टेस्ट दिया कीजिए रफ नोटबुक पर। मैं आपको एक हिंदी बोलूँगा, उस हिंदी सेंटेंस की, जिस तरीके से ये वाले 4 सेंटेंस बनाए थे प्रेजेंट सिंपल में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में, 4 सेंटेंस आप बनाएंगे, हिंदी में बोलूँगा, चारों अलग अलग टेंस के अंदर 4 सेंटेंस आप लोग बना करके दिखाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, बोलूँ? शैल वी स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट? भी नहीं, आए, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। अमेरिकन्स, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये वीडियो सारी अमेरिका जाने वाली हैं, वाशिंगटन DC। मुझे जो है स्पेशली इनविटेशन भेजा जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी से। यू नो द डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर ऑफ USA, सो ही इज़ गोइंग टू इनवाइट मी to teach his subordinates, his teammates and the workers who are working in the Donald Trump's company. So this is why I always say every day, I think you all guys see that I always say Americans, this is the reason, है ना। उस दिन भी बताया था PP टेंस, वो जो आया था ना केस, उन्होंने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को PP टेंस, मानव
उमर गुल ने। यस प्लीज़। मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको इसकी इंग्लिश बनानी है क्या? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। 4 सेंटेंस बनाने हैं पढ़ाने के ऊपर आपको, अलग अलग टेंसेस के अंदर। बनाइए। क्या कर रहे थे आप वहाँ? मोबाइल आपका जो है डिटेन करवा देंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, बना रहे ना आप लोग? तो पहला बनाना है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर में बनाएंगे कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आप लोग अपना बनाइए, डोंट चीट। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं जीत गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी चीटिंग नहीं की होगी, मेरे में से खुद किया होगा, बिकॉज यू ऑल आर ऑनेस्ट गाइज। यस, है ना? आप लोगों ने चीटिंग नहीं की है, शाबाश। आई अप्रिशिएट दिस पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी। तो जब मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आप लोगों के ध्यान में पता नहीं क्या क्या आया होगा। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे क्या बनाना है? सिर्फ 2 ही वर्ड बनाने थे, आई टीच। अगर मैं ये कह देता कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये हो जाता आई टीच इंग्लिश। ठीक है, आई एम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। रीज़न बता दें आपको, आई एम इसलिए नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल है। ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आई प्ले फुटबॉल। आगे चलें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। आई एम प्लेइंग, एम यहाँ लगेगा कंटिन्यूअस में, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर एम नहीं है शुभम, यहाँ पर एम है, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। गौर देने की बात यह है कि इंग्लिश का ई कैपिटल है, यानी हम लोगों ने राइटिंग स्किल के हवाले से आज चौथी बात ये सीखी कि लैंग्वेजेस के नाम जब आ जाएं तो उनका पहला लेटर, कंट्रीज़ के नेम, सिटीज़ के नेम, विलेजेस के नेम, लोकेलिटीज़, लेन्स, स्ट्रीट्स, रोड्स, इनके नेम्स कैसे रहेंगे? पार्क्स के नेम, जिम्स के नेम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितना भी है, इनके नेम्स के फर्स्ट लेटर्स कैसे रहेंगे? आई हैव टॉट इंग्लिश। गौर देने वाली बात यह है कि टीच की जो थर्ड फॉर्म होगी वो टॉट होगी। ये क्या है? थर्ड फॉर्म, V3। ये क्या है? V4 फॉर्म। यहाँ क्या थी? V1 फॉर्म। टीच, टीचिंग, टॉट। अब कब से पढ़ा रहा हूँ मैं? 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश और ऐड कर लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अहमद रब करो, रब करो बोर्ड पर। तो एम वाला क्वेश्चन पूछा था, आप दोनों एक एक क्वेश्चन पूछें जल्दी से, ये आपका अभी क्लास वर्क है। दिव्या क्वेश्चन पूछिए अभी इमीडिएटली। आप क्वेश्चन पूछिए, 4 लोगों को मैंने काम दिया क्वेश्चन पूछने का, इमीडिएटली क्वेश्चन पूछिए। दिमाग पर थोड़ा सा गिव सम पेन टू योर सीनेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आस्क क्वेश्चन, रेज क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। अब जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा शारिक ने कि आई एम यूज़ क्यों नहीं किया, लेकिन कंटिन्यूस में उसको किया। एम यहाँ पर क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। इज, एम, आर वो तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। अभी उसकी बात आएगी यहाँ, 2 मिनट थोड़ा रुकिए। सिंस और फॉर की बात समझाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को समझाएंगे। अभी टाइम है अराउंड 45 मिनट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जिस तरीके से उसने पूछा एम, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव और हैव्स, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो समझने वाली बातें हैं वो क्या हैं? आप लोगों ने तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, वो है सिंस फॉर और हेल्पिंग वर्ब वाला जो प्रॉब्लम है, जो आपने भी पूछा, इन्होंने भी पूछा। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास में जो पर्सन्स हैं मेनली
जिस पर हम लोग नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में काम करते हैं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश में जो ग्रामर यूज़ करते हैं हम लोग, वो सिर्फ फंक्शनल ग्रामर, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं, जिसका यूसेज है, जिसका प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ज़्यादा है। मैंने वर्ड यूज़ किया है यूसेज, यूसेज, ठीक है, क्या यूज़ किया है, यूसेज। तो हमारे पास जो मेनली पर्सन्स हैं वो ये हैं, नेम मतलब वही विशाल, मानव, अहमद, आयशा एसेट्रा एसेट्रा, नेम कुछ भी हो सकता है किसी का भी। और दे के अंदर में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, माई पेरेंट्स, माई कलीग्स, माई क्लासमेट्स, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल। इसको भी हम लोग 30-40 टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, राइट और रॉन्ग। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं बस सिर्फ, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आई प्ले क्रिकेट बोलना है तो आई प्ले क्रिकेट, हम, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ही शी नेम, कुछ भी हो सकता है, ही शी नेम, नेम के अंदर अहमद, आयशा, साइमा, आयमा, टाइमा, एसेट्रा एसेट्रा, जुनैद, एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी हो सकती है, अहमद, शहमद, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, विशाल, मानव, सिंघानिया, खन्ना, इल्लू, किल्लू, टिल्लू, पिल्लू, एसेट्रा एसेट्रा, कोई भी ना हो, ठीक। लेकिन वो बंदा कैसा होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि वो हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगा, वो हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगा। हमारे कम्युनिकेशन के अंदर में दो ही बंदे शामिल होते हैं, कौन कौन, आई, ये आप लोगों को रटी हुई है बात, हमारे कम्युनिकेशन में दो ही बंदे शामिल होते हैं, आई और यू, बाकी सब कौन है, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन दो प्रकार के हैं, एक तो सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ये कौन है, सिंगुलर है, ये कौन है, प्लूरल है, ठीक है। ही प्ले, तो जब प्ले की बात आएगी ये क्या हो जाएगा, प्लेज, एस ही एस जोड़ दिया जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, या वो क्रिकेट खेलती है, या विशाल क्रिकेट खेलता है, मानव क्रिकेट खेलता है, एसेट्रा एसेट्रा। दे, माई पेरेंट्स, माई क्लासमेट्स, माई कजिन्स, माई ब्रदर्स, माई कलीग्स, माई नेबर्स, एसेट्रा एसेट्रा, प्ले क्रिकेट। यहाँ पर एस यूज़ किया गया है, बाकी कहीं पर भी एस यूज़ नहीं किया गया है। एक तो मुद्दे की जो बात है समझने वाली वो ये है, जी पूछिए। हाँ, एस लगाते हैं, जब तक मैं बोलूँ तब तक क्वेश्चन नहीं पूछो, और अगर क्वेश्चन पूछना ही है, हाँ इमीडिएटली, क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ है क्वेश्चन पूछना, तो फिर ये मैनर्स, ठीक है, ऐसे कर दें आप तो मैं अलाउ कर दूंगा आपको, मैनर्स को फॉलो करना है। यहाँ एस नहीं है, यहाँ पर भी एस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ एस है, यहाँ पर एस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर में एस यूज़ किया जाएगा। ये बात याद रखनी है, इसको उतार लें आप एज इट इज़, ठीक है। जो टॉपिक आपका चल रहा है ना ग्रामर का, ठीक है, लास्ट क्या है, आप थे ना लास्ट क्लास में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेडिंग डली हुई है या कंप्लीट नोट्स हैं? लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट क्लास में और साफ थे, बताइए। हुआ है, नोट नहीं करवाया था। सॉल्यूशन बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या करना है, जस्ट अ मिनट। तो आप एक काम कीजिए, इसे नहीं उतारिए, पहले इसके नोट्स बना लीजिए, 1 2 3, ये 3 स्लाइड्स हैं हमारे पास, लाइए कॉपी दीजिए। लेकिन टाइम भी हमारे पास कम है, तो जल्दी उतारें आप लोग। यहाँ से इस वाली स्लाइड को उतार लीजिए बस, बाकी स्पेस छोड़ दीजिए, मैं बाद में करवाऊंगा। अब इसको उतारने का काम हम लोग बाद में करेंगे, इस स्लाइड को उतार लें बस। जो न्यू कमर्स हैं मैं उनको बता दूं, हेडिंग लगाएंगे, स्पेस जिस तरह दी हुई है उसी तरह स्पेस आप देंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है ये कई बार बताया जा चुका है, हम लोग बाद में इसको रिपीट करेंगे, मौका रहा तो आज भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की हेडिंग लगाएंगे, फिर इसी मैनर के अंदर उतरना है, फिर स्पेस देना है, फिर इसी मैनर में एग्जाम्पल्स को उतरना है, सेम मैनर के अंदर।
डन। improve your writing. Yes, sir. Ahmed, you please also improve your writing. This should be the manner. Shabash. Done. Present participle form. In present simple, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखें यहाँ पर आप, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो ऊपर है वो बात यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। एडिट नहीं किया गया है इसको कंट्रोल सी के बाद। डन। मानव, हैव यू रिटन? सायमा, हैव यू रिटन? ठीक। ये जो मैंने बात कही है अभी, हैव यू रिटन, ये टेंस कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट था। कितने लोग एग्री करते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ये, परफेक्ट। ये क्वेश्चन था, ये क्या था? हैव यू रिटन, क्या तुमने लिख लिया? ये क्या था? क्वेश्चन था। तो दो बातें हमारे सामने आ गई, एक होता है क्वेश्चन, एक होता है स्टेटमेंट। क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। लेकिन स्टेटमेंट के आखिर के अंदर फुल स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है। और उसकी स्टार्टिंग नॉर्मली सब्जेक्ट से या कुछ केसेस के अंदर में ऑब्जेक्ट से भी स्टार्टिंग हो सकती है, यानी ना हेल्पिंग वर्ब होगा शुरुआत में, ना क्वेश्चन वर्ड होगा, बल्कि कुछ और ही होगा, और आखिर में क्या होगा? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मैं खेल रहा हूँ 2 घंटे से फुटबॉल। ये नहीं लिखा है कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, इसलिए क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव नहीं पढ़ रहे हम लोग, नेगेटिव नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ हेडिंग क्या लगा देते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट। हर जगह लगा हुआ है ये, हर स्लाइड के अंदर जहाँ पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट बताया गया है। इसको यहीं रोक दीजिए आप लोग लिखने की सीरीज़ को। मेरी बात गौर से समझ लीजिए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में ये बात बताई है कि यहाँ पर एस यूज़ किया जाएगा। कंप्लीट 1.5 पेज छोड़ने के बाद अपनी नोटबुक का जो रजिस्टर का साइज़ है, डायरी वाले ज़्यादा छोड़ें, इस मिसाल को लिखें, इस एग्जाम्पल को लिखें। रजिस्टर का 1.5 पेज और डायरी के 2-2.5 पेज छोड़ने के बाद में इसको आप लिखिए एग्जाम्पल। 3 लाइन छोड़कर, एटलीस्ट स्किप 3 लाइन्स, 3 लाइन छोड़ने के बाद में इस एग्जाम्पल को लिखिए। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही शी नेम, इसको इसी स्टाइल में लिख लीजिए, ही शी नेम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना है आपको। दे माई पेरेंट्स प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप आखिर के अंदर में लगाना है। जल्दी करिए थोड़ा सा, अभी कई एग्जाम्पल्स आएंगी, स्पीड से लिखने की कोशिश करिए। वी हैव लीस्ट टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज डू इट फास्ट। डन। ये क्या था? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो मैंने 3 लाइन छोड़ने को कहा है ना, यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस।
ब्रैकेट में लिखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। आप बताइए कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब। आई टीच इंग्लिश, ये प्ले था, ठीक है। आई टीच इंग्लिश। सारे लोग देखिए बोर्ड की तरफ, लिखने का काम बाद में। वी के साथ यही सेंटेंस क्या बनेगा औसाफ? वी टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। यही सेंटेंस यू के साथ, यू टीच इंग्लिश। और यही सेंटेंस जब ही शी इट या नेम के साथ में आ जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो शी टीच का हो जाएगा टीचेस, टीचेस इंग्लिश। माई पेरेंट्स, दे, माई क्लासमेट्स, माई कलीग्स। लाइक मैं बनाता हूँ माई क्लासमेट्स के बाद, माई क्लासमेट्स टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर ES यूज़ किया गया है टीच के बाद में। आज हम लोगों ने ये बात सीखने की कोशिश की है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ। मेरे साथ एक बार हिंदी में बोल लीजिए आप लोग। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, हिंदी बोलें। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ा जाता है। ऐसे हिंदी बोलनी है, बिल्कुल हिंदी में समझ लें आप लोग। क्लास किसकी है? ये स्पोकन इंग्लिश। लेकिन समझाया कैसे जा रहा है? वजह क्या है? वजह यह है कि वी आर हैबिचुअल, वी आर एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी, वी आर यूज्ड टू विद हिंदी, वी आर यूज्ड टू विद हिंदी, वी आर यूज्ड टू विद हिंदी। दिस इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी। समझ लिया ना आप लोगों ने इस चीज़ को? इन दोनों एग्जाम्पल्स को उतार लेना है इसी सीरीज़ के अंदर। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 उतार लीजिए। जल्दी उतार लीजिए। आर यू, मज़ा नहीं आ रहा है ना क्लास में? नॉट एन्जॉइंग द क्लास, नॉट एबल टू एन्जॉय द क्लास। अभी इतना सिलेबस निकल गया ना, इस वजह से जो कंफर्ट जोन में नहीं है अभी आप पढ़ते हुए, यू आर नॉट कंफर्टेबल लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट्स। शायद ही आप लोगों को ऐसा कभी मौका मिलेगा, शायद ही ज़िंदगी में, जिस फील्ड में आप लोग हैं, कि इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी, वो भी इतना रेपिटेशन के साथ। शायद ही कभी मौका मिलेगा। स्कूल या टीचर्स या कोई भी जो ग्रामर का टीचर होता है वो इतनी बार रिपीट नहीं करता है कॉन्सेप्ट को। ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है किसी टीचर के लिए, इतना रिपीट करना, और उसके अंदर जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बाकी रहे, वो उसको मोनोटोनस जॉब की तरह ना लेकर के इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह लें। ये मुश्किल हो जाता है काफ़ी। लिख लिए? आपने लिखा? नॉट रिटन स्टिल, नॉट रिटन येट। यही तो गलती है, इसीलिए नहीं आती है इंग्लिश इंडियंस को, कि इसी से हो जाएगा। इससे नहीं होगा। सिर्फ अभी तक पास्ट टेंस तक ही पहुँचे हैं, वो भी उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट ना नेगेटिव ना क्वेश्चन। तभी 80 स्लाइड्स हो चुकी है। कितनी? 80 स्लाइड हो चुकी हैं अभी तक, 80। ये सिर्फ टेंसेस के अंदर में करीब 250 स्लाइड बैठाएंगी। आप कह रही हैं कि इसी से हो जाएगा। इसको रब करूं, मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है। बहरहाल तो डेली रूटीन भी पढ़ा दिया है।
अरे डेली रूटीन पढ़ाया नहीं था ये? नहीं, पूरा पढ़ लिया था, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्कस नहीं किया था ये जो था फ्रोजन कस्टर्ड फॉर डेजर्ट, तमाम। इसका भी हैंड आउट दे देंगे, टाइम वाकई कम है, ये सिर्फ 1 घंटा होता है, इसका भी हैंड आउट दे देंगे। सिखा दिए हैं टेंस कौन सा है ये भी सिखा दिए हैं, क्या चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब बता दिया है आप लोगों को। अब एक बार एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, बल्कि रुकिए अभी 1-2 एग्जाम्पल और इधर ही देख लेते हैं, अभी 5 मिनट और। प्रेजेंट सिंपल की एग्जाम्पल देखी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग अब। ये मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें आप लोग, पूरा लिखिएगा। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिखी थी, प्ले क्रिकेट और टीच इंग्लिश, उन्हीं को ले लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वी था पहले, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आई वी यू ही शी या नेम रहे, इज प्लेइंग क्रिकेट। दे आर माई पेरेंट्स, माई क्लासमेट्स, माई कलीग्स, माई टीममेट्स, माई क्लासमेट्स, ये सारा यहाँ पर आएगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ सिर्फ ये सिखाना मकसद है इस एग्जाम्पल को देख करके। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वी के साथ आर, यू के साथ भी आर, ही शी इट के साथ इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस के अंदर, और दे के साथ अगेन आर। यानी इज का बस एक ही यूज़ है, आई के साथ वो इज का एक ही यूज़ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट नेम के साथ। एम का भी एक ही यूज़ है आई के साथ, ये फिक्स है, बाकी सबके साथ आर। तो इतना समझ लीजिए कि इज का एक यूज़ है और एम का एक यूज़ है, बाकी सबके साथ आर ही आएगा हमेशा। माई कलीग्स आर प्लेइंग क्रिकेट, माई टीममेट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, माई क्लासमेट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरी एग्जाम्पल क्या थी? दूसरी एग्जाम्पल थी आई एम टीचिंग इंग्लिश, वी आर टीचिंग इंग्लिश, you are teaching English, he is teaching English, they are teaching English। थोड़ा जल्दी लिख लीजिएगा। समझ आ रहा है आपको? अभी लेवल थोड़ा ऊपर आया। भी जितने फॉर्मेट्स दे दें कल तक, हैंडआउट्स देंगे कल तक, सारे रीड करने हैं 2-3 बार बैठ करके, फिर देखिएगा ये सब आराम से समझ आ जाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया है अपने, नीट एंड क्लीन नोटबुक, आई लाइक दिस, आई अप्रिशिएट। अहमद रफ़ी जी, तो हम लोगों ने ES वाले कॉन्सेप्ट को समझा, SES वाले कॉन्सेप्ट को। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SES जोड़ा जाता है। बोल दीजिए एक बार ऐसे ही हिंदी में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन, पर्सन के साथ ही शी कौन है? पर्सन। इनके साथ वर्ब में S या ES जोड़ा जाता है। इज का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, एम का यूज़ आई के साथ, बाकी सबके साथ आर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है? परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये बोलना है कि मैं खेल चुका हूं, तो बोलेंगे आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट। ही शी के साथ हैज़ का वर्ड यूज़ किया जाएगा, हैज़ प्लेड क्रिकेट। बस ये डिफरेंस है समझने वाला। और दे, माई पेरेंट्स, माई क्लासमेट के साथ अगेन हैव प्लेड क्रिकेट, वो खेल चुके हैं। ठीक, अगली एग्जाम्पल आप लोग खुद बना लेंगे अब टीच इंग्लिश वाली, उसमें कुछ नहीं चेंज करना है। आई हैव प्लेड की जगह आई हैव टॉट हो जाएगा, आई हैव टॉट। ये फॉर्मेट कौन सा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है ये। भाई इतना ही लिख लीजिए, बाकी आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास के बाद में। मैं अगली एग्जाम्पल देता हूँ अगले टेंस के लिए, मैं बताऊंगा अभी, आप नॉर्मली लिखिए जैसा भी है। I will tell you after the class. Please make a new notebook or a small diary at least. Manav, you also please. Is this a new notebook? Right now he is writing in a rough notebook. But why? Not in a notebook. Done? Have you done? Shubham, have you done? अरे लबीबा, have you done? They have played cricket. I have taught English. इसकी भी एग्जाम्पल आप लोग बना लीजिए, रब कीजिए। I have taught, we have taught, you have taught, he has taught। बना लीजिए आप उसके आगे एग्जाम्पल। शुभम लिखिए ना, I have taught, we have taught। अच्छा बोलो ना, मैंने कर लिया। अगर कुछ एग्जांपल देना प्लीज। क्यूटी स्यूटी, यस प्लीज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी अगर कोई काम चल रहा है पिछले कुछ वक्त से। अच्छा, ये जो काम चलने का जो मैं बोल रहा हूँ ना कि काम चल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई हैबिट, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रेजेंट Simple. मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं खेल चुका हूँ, इसके लिए यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे से, इसके लिए। अब मुझे ये बात बोलनी है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च कर रहा हूँ 2 साल से, तब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। या मिसाल के तौर पर ये बात बोल दीजिए आप कि मैं जिम कर रहा हूँ 2 साल से, ये बात बोलनी है, मैं जिम कर रहा हूँ 2 साल से। तो मैं अभी तो जिम नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं जिम करता हूँ रोज़ाना, और 2 साल से करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अभी कर रहा हूँ, अभी तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो एक ऐसा एक्शन जिसको अभी एट प्रेजेंट में दिख नहीं रहा है वो होते हुए, लेकिन करता हूँ मैं डेली बेसिस पर, और 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, या 2 महीने से, या 2 हफ्ते से मैं करता हुआ आ रहा हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, आई डू कंटेंट राइटिंग। आई हैव बीन डूइंग कंटेंट राइटिंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग कंटेंट राइटिंग सिंस 2020, में 2020 से कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। तो अभी तो मैं कंटेंट राइटिंग नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है कि ज़रूरी नहीं वो एक्शन अभी एट प्रेजेंट में चल रहा हूँ, लेकिन आदतन वो चल रहा है, तब भी टेंस कौन सा यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मेरी बात क्लियर हो गई आपको? अभी एक्शन होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा ना, लेकिन हो रहा है वो एक्शन कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से, 3 सालों से।
और एक एक्शन ऐसा है जो अभी नज़र आ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो दोनों ही के अंदर में अगर टाइम बताना हो कि कब से हो रहा है ये एक्शन, तो हम क्या बताएंगे? हम लोग यूज़ कौन सा टेंस करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours. You have been playing cricket for 2 hours. We have been playing cricket for 2 hours. He जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा has been playing cricket for 2 hours. They have been playing cricket for 2 hours. तो यहाँ पर भी अगेन हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की है। हैज़, इज़ और वर्ब के साथ एस ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ही यूज़ होगा। अब 3 बातें हमारे सामने आ चुकी हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस के अंदर में। इज़, हैज़ और हैज़ बीन किसके साथ यूज़ किया जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, इज़, हैज़, हैज़ बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज़ किया जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल ये डन। लबीबा, अरीफा, एग्जाम्पल डन। डन। स्लाइड देखिए, स्लाइड के अंदर हर एक टेबल के अंदर ये एक टेबल है, या इसको सेट भी बोलते हैं हम लोग, टेबल भी बोल देते हैं और हम लोग इसको सेट भी बोल देते हैं, आप चाहे जो बोल दीजिए। एक सेट है 4 सेंटेंसेस का, जिसके अंदर पहले सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में, दूसरे को प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे को प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया गया है। एक ही सब्जेक्ट के साथ और एक ही वर्ब के साथ 4 अलग अलग वक्त, 4 अलग अलग टेंस के साथ में दिखाने की कोशिश की गई है। मैंने अभी बोलते हुए, एक्सप्लेनेशन देते हुए अरीफा ये बात बोल दी थी कि एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब के साथ, लेकिन 4 अलग अलग वक्त, टाइम, समय। ये क्यों बोल दिया था वक्त? ये आदत है, ये काम हो रहा है, ये हो चुका है और ये कुछ लंबे वक्त से होता हुआ आ रहा है, तो अलग अलग टाइम भी होगा एक तरीके से देखा जाए तो, सेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ही प्लेज, ही है इसलिए यहाँ पर एस यूज़ किया गया है। अगर अरीफा यहाँ पर आए होता तो यहाँ पर एस यूज़ होता या नहीं? अगर यहाँ पर दे होता तो, और अगर यहाँ पर शी होता तो, और अगर यहाँ पर होता माई मदर, होता माई मदर अगर होता तो यहाँ पर एस यूज़ होता। माई मदर इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने अभी ये बात बताई थी कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर 2 ही बंदे शामिल हैं, आए, उसके अलावा जितने भी लोग आ रहे हैं सिंगुलर में, वो सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर माने जाएंगे। ठीक है, प्लूरल के अंदर वी है, लेकिन ये जो वी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ में एस यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से यू ऑल, जिसकी एग्जांपल नहीं दी हुई है, लेकिन यू ऑल हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वहाँ पर भी एस यूज़ नहीं होगा। दे, माई पेरेंट्स, माई क्लासमेट्स, इसके साथ में भी एस यूज़ नहीं होगा। ही की कैटेगरी के अंदर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, नेम, माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई कज़न, माई शॉफर, माई ड्राइवर। शॉफर कहते हैं ड्राइवर को शॉफर भी बोला जाता है। ठीक है, माई कज़न, माई नेबर, माई पियोन, माई सर्वेंट, माई अटेंडेंट, माई पीए, माई टीचर। ये सारे लोग कौन हैं? थर्ड पर्सन। ये सारे लोग कौन हैं? तो अगर यहाँ पे माई फादर होता अरीफा, तो
एस ई एस यूज़ करते हैं। शुभम अगर यहाँ पर माई ब्रदर होता तो यहाँ पर एस आता ही है या नहीं आता? चलिए अभी टेस्ट देंगे अब लोग, आप लोग कल, और रिटन फॉर्मेट में टेस्ट लेंगे अब हम लोग आपका कल, टाइप कर लेंगे उसको। ही इज़ प्लेइंग, इज़ का यूज़ किया गया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर वी होता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आता? आर आता। ही इज़ प्लेइंग और आई एन जी फॉर्मेट यूज़ किया गया है। ही हैज़ प्लेड, और अगर यहाँ पर ही की जगह पर क्या होता? दे होता। तो ये हैज़ की जगह क्या हो जाता? हैव। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। यहाँ पर टाइम को मेंशन किया गया है, फॉर्मेट आई एन जी यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन में ये बात समझ लेते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अगेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो नॉर्मली टेंसेस के अंदर में किस तरीके से यूज़ होता है? 1 फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 1 4 3। इसी तरीके से दे डू होमवर्क, दे आर डूइंग होमवर्क, दे हैव डन होमवर्क, दे हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours, 2 weeks, 2 years, जो भी रहे उसको बता देंगे। शी टीचेस, शी की वजह से ये ई एस जोड़ा गया है यहाँ पर, शी की वजह से ओनली। अगर ये होता दे तो टीच हो जाता, वी होता तो भी टीच हो जाता, आई होता तब भी टीच हो जाता। इंग्लिश, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, शी हैज़ टॉट इंग्लिश, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। इसी तरीके से हमें बताना है कि वहाँ पर बारिश होती है तो तातीते आ गया। इट रेन्स देयर, इट रेन्स इन शिमला, इट रेन्स इन चेरापूंजी। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जिसमें जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, कहाँ है चेरापूंजी? यूपीएससी? नहीं। इट रेन्स देयर, इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही है। आई एन जी फॉर्मेट यूज किया। इट हैज़ रेन देयर, वहाँ बारिश हो चुकी है। इट हैज़ रेन इन आगरा, आगरा में बारिश हो चुकी है। इट हैज़ बीन रेनिंग देयर फॉर अ वीक, वहाँ एक हफ्ते से बारिश हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग अ टूर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। से फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग टू विजिट धर्मशाला सपोज। सो द मानव को हम लोगों ने, वी हैव गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द मानव डेट प्लीज इन्फॉर्म, टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द धर्मशाला। इज इट इन उत्तराखंड और हिमाचल? हिमाचल प्रदेश। सो द after getting the information via Google, after doing the Googling and the YouTubing, so the Manav told us that, sir, it has been raining there for a week. इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में बताया कि सर वहाँ पर बारिश हो रही है एक हफ्ते से। सो शुड वी मेक another plan to visit, say for example Guwahati or some other tourist destination in India, or otherwise to a foreign country like UAE, Malaysia, UK, etc., etc. But the SAMA will reply to you, to us, to the manager or to the chairperson, that it is not pocket friendly for me. My parents send me every month only $5,000. Americans, जो रुपये होती है, करेंसी होती है ना, जैसे बोलते हैं ना 5,000 रुपये, $10,000, उसको बक्स बोलते हैं, BUC के, बक्स। इट हैज़ बीन रनिंग फॉर अ वीक, तो यहाँ पर भी इट के साथ में टाइम को मेंशन किया गया है, टाइम को मेंशन किया गया है। आई होप कि यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाती है। इसके भी हैंड आउट देंगे, जो टाइम कम है और आप लोग उसको याद करने में वक्त बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। आखिर के 5 मिनट के अंदर में हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। जी, तो जो आप स्लाइड्स दिखाते हो उसके फोटो लेके रीड करना क्लियर है। मैं अभी इसके बारे में ये नहीं बोलूँगा, कैमरा ऑन है कि आप ऐसा कर लें, बाहर बोलूँगा, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है बात। कर लीजिए, ठीक है, अब उतने एडिट कर दीजिएगा, बोल दिया है मैंने रोबोट को। जी, किसको बुलाएं? आप आइए, स्लाइड की तरफ फेस कीजिए, यहाँ पर सेंटर में, ये सेंटर है। सारे लोगों को पता है जब भी मैं किसी को बुलाया करूँ तो यहाँ खड़े होना है, इस वाले टाइल पर। अरे बोले अभी, यहाँ खड़े होना है। चलिए पढ़िए ज़ोर से, लाउडली। शी टीचेज इंग्लिश, शी टीचेज इंग्लिश, ऐसे पढ़िए। शी टीचेज इंग्लिश। जी, रिपीट आफ्टर हिम, रिपीट आफ्टर हर। नेक्स्ट। She is teaching English. She is teaching English. She has taught English. She has taught English. She has been teaching English for 10 years. She has been teaching for 10 years. अभी फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए आप, उसकी हिंदी भी बताइए, पढ़िए। She teaches इंग्लिश। She teaches English. हिंदी बताइए। वो इंग्लिश पढ़ाती है. वो इंग्लिश पढ़ाती है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, वो इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, She has taught English. वो इंग्लिश पढ़ा चुकी है। नेक्स्ट, She has been teaching English for 10 years. वो 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है। टेक योर सीट, कम हियर। ये सेंटेंस पढ़ना है आपको, हिंदी बतानी है, पढ़िए। इट रेन्स देयर, वहाँ बारिश होती है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर तातीते वाली सेंटेंस माना जाएगा। गौर देना है एक बात पर, इन्होंने मिस्टेक की है तो ये लेसन सारे लोगों के लिए है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल। ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, यानी तातीते वाला सेंटेंस है। वहाँ बारिश होती है, ये भी सीखने वाली बात थी। वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तातीते वाला सेंटेंस है ये। वहाँ बारिश होती है। इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही है। पढ़ाइए अब जोर से। यस, वहाँ बारिश हो रही है। It has rained there. वहाँ बारिश हो चुका है। वहाँ बारिश हो चुकी है। एक मिनट, ये जो चुका और चुकी वाला सिस्टम है ये डायलेक्ट का डिफरेंस है, इसमें मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बट वी शुड रेस्पेक्ट द अदर्स डायलेक्ट, ठीक है। दूसरों की परेशानी को, दूसरों की चॉइस को, दूसरों का जो भी कल्चर है, किसी का भी, इंडिया के अंदर 85,000 डायलेक्ट्स हैं, वो कल्चर का ही हिस्सा है एज पर द रिपोर्ट। उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। परफेक्ट, यस प्लीज। It has been raining there for a week. इट हैज़ बीन रेनिंग देयर फॉर अ वीक। वहाँ एक हफ्ते से बारिश हो रहा है। वहाँ एक हफ्ते से बारिश हो रहा है, ठीक है, बैठिए, टेक योर सीट। औसाफ आइए अब। औसाफ इज सीनियर इन द बैच, सो ऑलवेज आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, गिव रेस्पेक्ट टू द औसाफ। ही प्लेज फुटबॉल, हिंदी बताइए। वो फुटबॉल खेलता है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल चुका है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years। वो फुटबॉल खेल रहा है 2 साल। 2 साल से। बैठिए। अब आप लोगों में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, कौन कौन से हैं? हैज़, हैव, हैज़, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी 2 हैं। हैव, हैज़, हैज़ बीन। इस पर आप एक कल ऐसे या कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आइएगा। अगर आप सही साबित हुए तो कल ही आपको नोबेल प्राइज़ दिलवाएंगे। यहाँ पूरी टीम यूएसए से इनवाइट करवा कर इनको नोबेल प्राइज़ देना है। बोल दिया हूँ मैं, कमांड दे दिया, वो नोबेल आ रही है। हेलो डोनाल्ड ट्रम्प सर, प्लीज़ सेंड योर टीम फॉर द नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स। हियर वी हैव अ नेक्स्ट अपकमिंग नोबेल लॉरिएट। बोल दिए हैं, कमांड दे दिए हम लोग, ठीक है। तो आप बताइएगा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 2 हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, दोनों एक साथ, ठीक है। दोनों को एक साथ बोलना है, हैज़ बीन। समझने के एतबार से ऐसा है, लेकिन अगर आप कोर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ये बात बोलते हैं कोर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ ग्रामरियन और अ लेक्सोग्राफर, रेदर यू आर जस्ट लर्निंग ए स्पोकन इंग्लिश। लेकिन बता देते हैं, हैज़ एक अलग हेल्पिंग वर्ब है, बीन एक अलग हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन समझने के एतबार से आप ये समझें हैज़ बीन, हैव बीन 2 हेल्पिंग वर्ब हैं किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने समझा है, चारों को एक साथ पढ़ना हम लोगों ने सीखा है। मैं ये बस बता देता हूँ, इसका भी अब मैं हैंड आउट दे दूंगा। जब भी ये बात पता ना हो कि कोई काम एग्जैक्टली कब से चल रहा है तो फिर फॉर का यूज़ करना है। जब भी ये बात पता ना हो कि आखिर कब से 2 घंटे जो हैं वो कौन से 2 घंटे हैं, ये पता ही नहीं है। 2 साल वो कौन से 2 साल हैं, पता ही नहीं है, तो फिर फॉर। अगर ये पता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के वहाँ से ये काम शुरू हुआ है, ओरिजिन उसका एग्जैक्टली पता हो, तो फिर सिंस। समझ लेते हैं यूसेज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर इज यूज टू से द पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज टू से द पॉइंट ऑफ टाइम। ये लैंग्वेज हो गई, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स, अब कौन से 2 आवर्स नहीं पता,
फॉर 2 days, कौन से 2 दिन नहीं पता, फॉर 2 nights, 2 weeks, 2 years, 2 decades, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन डूइंग जिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन कमिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू प्ले विद द DPE टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं एक लंबे समय से इनके साथ में खेलता हुआ आ रहा हूँ DPE टीम के साथ में, ठीक है. आई हैव बीन वॉचिंग एंटरटेनमेंट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे वक्त से यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हुआ आ रहा हूँ. अब लंबा वक्त कितना है आपको भी नहीं पता है, तो लंबा वक्त फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन से. आई हैव बीन सफरिंग विद फीवर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन से मैं फीवर मुझे आ रहा है. आई हैव बीन सफरिंग विद कफ और कोल्ड फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन. फॉर अ कपल ऑफ डेज, मोर और लेस सेम ही है. फॉर 2 centuries, 2 centuries से ऐसा हो रहा है. पूछिए क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपके जवाब, पूछिए ना. चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग फिक्स है, ठीक है. साइमा इज सफरिंग विद कोल्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है. साइमा को जो है कोल्ड है, कब से, मॉर्निंग से. मानव इज ईटिंग पिज्ज़ा सिंस मॉर्निंग, मानव जो है वो पिज्ज़ा खा रहा है सुबह से, ठीक, हो सकता है ऐसा. अच्छा, ये बोल देते हैं कि मानव इज वॉचिंग नेटफ्लिक्स सिंस मॉर्निंग, ये ठीक था, सुबह से वो नेटफ्लिक्स देख रहा है. सिंस वेंसडे, वो बुधवार से ऐसा कर रहा है, ये कर रही है, जो भी हो रहा है. वेंसडे, इसका प्रोनाउंसिएशन वेंसडे. वेडनेसडे, वेडनेसडे, इतना लंबा वाला प्रोनाउंसिएशन ना करें, शॉर्ट में कर दिए, वेंसडे, वेंसडे. ब्रिटिशर्स बोलते हैं डे, टुडे, एवरीडे. अमेरिकन, इसका जो ये पूंछ है ना, जो टेल है इसकी, ए, डे, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, डे, टुडे, एवरीडे, वेंसडे, वेंसडे, कोई इतना डिफरेंस है, ठीक. सिंस वेंसडे, सिंस जनवरी. अब जो जनवरी है आप राइटिंग स्किल के हवाले से देख लीजिए, यहाँ पर W कैपिटल है, J कैपिटल है. मैंने जो प्रोनाउंस किया है वर्ड, दिव्या क्या किया है, W. करना क्या चाहिए, बहरहाल. सिंस 2005, सिंस 10th of October, सिंस 10 AM, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे. डे बिफोर यस्टरडे की हिंदी सबको पता होगी, नहीं पता है मैं बता दूंगा. सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर. सिंस ही वेंट टू अमेरिका, जब से वो अमेरिका गया है, जब से वो अमेरिका गया, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम की तरह यूज़ हो सकता है. सिंस ही वेंट टू मलेशिया, सिंस ही वेंट टू जकार्ता, जब से वो जकार्ता गया है, तब से ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है. सिंस ही गॉट द जॉब, जब से उसकी जॉब लगी है, वो देर से ही आता है, घूमता घामता देर से ही आता है, गाने सुनता हुआ. सिंस ही टुक द चार्ज, जब से उन्होंने चार्ज लिया है, चोरियां नहीं हो रही हैं, ठीक है. सिंस ही बिकेम प्रेसिडेंट. अब यहाँ पर गौर देने की बात यह है कि प्रेसिडेंट का P, अगर बोलते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो फिर P और I कैपिटल हो जाता, स्पेसिफिक. सिंस ही मैट विद एन एक्सीडेंट, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो गाड़ी 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाता है. बट मानव राइड्स ऑन 60. सिंस ही पास्ड अवे, जब से उनकी डेथ हुई है, घर तो रुहासा हो गया है, बोलते हैं ना हम लोग, तो तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस ही पास्ड अवे. सिंस ही बिकेम जिम कोच, जब से वो जिम कोच बना है, या जब से वो प्रेसिडेंट बना है, या चेयरपर्सन बना है, या वो प्रोफेसर बना है, कुछ भी बोला जा सकता है. सिंस ही बिकेम फिटनेस ट्रेनर, सिंस ही बिकेम चेयरपर्सन, सिंस 1 May. इन सारी जगहों पर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट किया जा रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे. क्वेश्चन पूछिए जी. नया उतारें आप इसको, और अगर फ़ोटो लिया है आप लोगों ने तो एज यू विश, अदरवाइज़ अगर सभी लोग फ़ोटो लेंगे तो फिर हम लोग इसका वो नहीं देंगे, हैंड आउट. एक कोई बंदा ले ले आईफोन वाला मालदार इंसान, और बाकी लोगों को जिसने अपनी किडनी बेचकर आईफोन ख़रीदा हो, ठीक है, जिसने अपनी किडनी बेच करके जो उन्होंने फ़ोटो लिया है, विल यू शेयर विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स और नॉट, विल यू शेयर, डेफिनेटली मेक श्योर दिस, विल यू श्योर और नॉट, परफेक्ट. So shall we wind up? So my dear youngsters, again we will meet tomorrow with the same energy, at the same time, at the same place, with a new topic. Thank you. Till then, keep your lips smiling. Thank you. Thanks a lot.